Hello children, good morning to all. In our previous class we discussed about that how internet work, and in our today's class our today's task is types of internet connection. So for this here our class begin. So children, in our previous class we discussed about that internet. What is actually internet? Internet is a network of networks, and after this we discuss about this working of the internet, that in the working we required client and server. It means internet work on client server architecture, and here two protocols we required, and the name of the protocols are HTTP and TCP/IP. HTTP stands for hypertext transfer protocol, and this HTTP protocol we are using to make connection between client and server. And TCP/IP protocol, it work on server side, and on server side TCP function is to divide the entire content into small packets, and these packets, that IP protocol will assign the address, and these packets will move in the network. So children, protocols we required now. So what is actually protocol? Protocol are the set of rules. What is protocol? Protocol are the set of rules, and in this working we required gateway. What is gateway? Gateway that we are using for connecting two different networks. Okay, two different networks we are connecting with this device, and the name of the device is gateway. Children, this one is the example of internet. In internet, here is all the different networks, and these networks are connected to each other with the help of this internet, and this internet is taking connection to taking data from this satellite. Okay, now these different networks are connected to this internet, and for this they required a router we are using, on gateway we are using for connecting two dissimilar networks, while router we are using for finding the shortest path. These topics we will cover later on also. One topic is there, different devices, there we will do these topics, router, gateway, in detail. Okay, next what we discussed in our previous class, that how data transfer. This one is the between client and server. So client is sending message, request server is giving, and in this we require protocol, and the server is sending those packets. That term is known as packet switching. Children, switching means movement. Okay, when packets are moving from server side to client side, this technique is known as packet switching. This topic we covered already in our previous class, that in packet on server side, who is making these packet? TCP protocol. TCP stands for transmission control protocol. So this TCP will divide the entire content into packets, and the limit of each packet is 1500 characters. Okay, this thing we discussed already in our previous class, and our today's ये तो सब हो चुका है, and our today's task is that connecting to internet. Okay, when we are connecting to internet, so many connections are there. First term is this ISP. What is actually ISP? This ISP is a internet service provider. Okay, children, last year one question is there in board exam, name any two ISP. ठीक है, ISP means internet service provider. As its name suggests, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. एंड इफ यू आर हैविंग कनेक्शन ऑफ दिस जियो, हु इज योर ISP? योर दिस रिलायंस कंपनी. If you are having connection of Idea, who will provide you that internet service? That Idea company. So that Idea company is your ISP. Last year this question is there in board exam, name any two ISP. ठीक है, so answer is this Airtel, BSNL, Reliance, these companies from where you are getting this access to this internet. So this one is your ISP. ISP stands for internet service provider. Now there are three main ways to connect to internet. कौन से हैं? First one is dial up internet access, or we can say dial up connection. Dial up connection, when you are connecting this internet in your laptop, तो right corner पे देखा है जहाँ पे हम connect करते हैं, there more than 2-3 networks are there. So you are selecting ना, तो वहाँ पे एक option लिखा होता है dial up connection.
ठीक है. नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस. तो पहले क्या होता था दैट यू आर यूजिंग दिस टेलीफोन ना, दैट लैंडलाइन. ठीक है, वहाँ पे क्या होता था दैट लैंडलाइन वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग कॉल्स, बट दिस लैंडलाइन यू कैन यूज टू कनेक्ट टू इंटरनेट ऑल्सो. ठीक है, उसमें क्या होता था, यू विल टेक दैट टेलीफोन, जो भी आपका लैंडलाइन कनेक्शन है, यू कैन टेक दैट वन फ्रॉम दैट लोकेशन, और सीपीयू में एक स्पेस होता है जहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर देते हो. ठीक है, टेलीफोन का वायर कनेक्ट कर देते हैं सीपीयू से, एंड देन वी आर डायलिंग वन नंबर. ठीक है, व्हेन वी आर डायलिंग दैट नंबर, तो आपका जो टेलीफोन होता है, दैट वन कैन एक्ट एज अ मॉडेम, and with this dial up connection, once you are dialing that connection from that landline, फिर आपका जो टेलीफोन था, लैंडलाइन फ़ोन, that will act as a modem, and with the help of this you are taking data, you are taking internet from that company. ठीक है, that ISP established connection, that modem to modem connection, and by which you are accessing this internet. ओके, डायल अप कनेक्शन क्या होता है, दैट विद दिस हेल्प ऑफ दिस टेलीफोन लाइन वी आर कनेक्टिंग with our computer and we are dialing one number. That dial up connection will establish, and your landline phone will act as a modem, and with that phone you are taking data. ठीक है, so this one is dial up internet access, means that with the landline phone you are taking as modem. ठीक है, सेकेंड वन इज ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस. ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस इसमें भी वैसा ही होता है. ठीक है, विद द टेलीफोन लाइन ओनली वी आर कनेक्टिंग, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड. इन डायल अप कनेक्शन जो स्पीड थी वो थी 56 किलोबिट्स पर सेकेंड. ठीक है, उसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होती है, बट ब्रॉडबैंड की जो स्पीड होती है इट इज़ जस्ट डबल ऑफ दिस डायल अप कनेक्शन. मीन्स स्पीड ब्रॉडबैंड की इज़ मोर एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन. Okay, next one is this wireless connection और Wi-Fi we are using now these days. ठीक है, Wi-Fi अभी आएगा थोड़ा डिटेल में, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. That with this Wi-Fi it uses radio frequency. ठीक है, in science you have learned about so many terms ना, that infrared waves, microwaves, radio waves. So this wireless connection Wi-Fi is using what? It will use these radio waves, and with this they are transmitting data through air. ठीक है, as its name suggests wireless है ये तो. ठीक है, अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड की और डायल अप कनेक्शन, दे बोथ आर यूजिंग टेलीफोन लाइन, उससे ही कनेक्ट हो रहा था. डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डायल अप में स्पीड कम थी, ब्रॉडबैंड में स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी. नाउ थर्ड वन इज वायरलेस कनेक्शन. वायरलेस कनेक्शन मीन्स वायर इज नॉट देयर, वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग एयर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एयर योर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, and with this we are connecting to this internet and we are taking access this internet. Children, here you will check that this Wi-Fi technology, this one line, Wi-Fi technology use radio frequency to transmit data through air. Okay, Wi-Fi का full form होता है wireless fidelity. ठीक है, and this Wi-Fi is कॉम्बिनेशन और वी कैन से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, लैन जो होता है, डब्ल्यू लैन, वाईफाई को बोलते हैं. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. दैट दीज इंटरनेट कनेक्शन अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज दिस डायल अप कनेक्शन. देखो, डायल अप कनेक्शन होता है जिसमें मैंने अभी बताया डेट वी आर यूजिंग टेलीफोन, लैंडलाइन फ़ोन. लैंडलाइन फ़ोन में जो वायर होता है, डेट वायर वी आर अटैचिंग विद आर CPU. ठीक है, और विद आर लैपटॉप, एंड वी आर डायलिंग वन नंबर फ्रॉम दैट टेलीफोन. जैसे ही हम करते हैं तो वो डेट कनेक्शन विल एस्टैब्लिश विद दैट कंपनी को समझ आ जाता है डेट यू आर यूजिंग दिस फोन एज अ मॉडेम, and with this phone they are giving you this facility that you can use internet. ठीक है, तो डायल अप जो कनेक्शन है यहाँ पे क्या होता है, इट रिक्वायर्ड गाइडेड मीडियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गाइडेड चिल्ड्रन? दैट व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू समवन, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है. ठीक है, मीडियम्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज गाइडेड, वन इज अनगाइडेड. गाइडेड मीन्स होता है जो जैसे वायर. ठीक है, जैसे वायर होता है, वायर ने गाइड कर दिया डेट फ्रॉम दिस पाथ ओनली योर डेटा विल मूव. बट इन अनगाइडेड मीडियम होता है जैसे एयर. अब एयर में तो ऐसा नहीं होता ना कि दैट स्पेसिफिक पाथ ओनली इट विल फॉलो.
ठीक है। अब एयर तो क्या है, वायरलेस मीडियम इज देयर, सो मैनी पाथ्स आर अवेलेबल। बट अगर मैं एक वायर की बात करूँ तो वायर में तो क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन से ही जाएगा डेटा। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं डायल अप इसका अनगाइडेड मीडियम का, तो अनगाइडेड मीन्स एयर, जहाँ पे गाइड करने के लिए कुछ नहीं होता। एयर क्या है, कंप्लीट एवरीवेयर एयर इज देयर, सो फ्रॉम डेटा कैन मूव फ्रॉम एनी पाथ। ठीक है, तो वो होता है हमारा अनगाइडेड मीडियम। तो फर्स्ट वन इज डायल अप कनेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट वन इज दिस डायल अप कनेक्शन। अब देखो डायल अप कनेक्शन में क्या है, दिस वन इज अ गाइडेड मीडियम, जैसे टेलीफोन लाइन्स दैट वी आर यूजिंग फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। सो दिस वन इज डायल अप कनेक्शन। और इसका दूसरा एक थोड़ा सा इसका साथ डिसएडवांटेज क्या है डायल अप कनेक्शन में, डेट योर लैंडलाइन फोन वायर यू आर यूजिंग, ठीक है, टेलीफोन वायर यू आर यूजिंग फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट, बट इन डायल अप कनेक्शन यू कैन यूज ओनली वन एट अ टाइम। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीनिंग इज कि अगर मैंने एक बार अगर उसे मैंने कनेक्ट कर दिया तो उस टाइम मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकती। इफ़ आई एम अटेंडिंग एनी कॉल तो इट मीन्स दैट टाइम आई एम अनेबल टू यूज इंटरनेट। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन इसकी दो क्वालिटी हैं। फर्स्ट वन इज इट विल वर्क ऑन गाइडेड मीडियम, मीन्स वायर को यूज करता है। सेकेंड वन इज इट विल नॉट अलाउ साइमल्टेनियस यूज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, देखो साइमल्टेनियस यूज ऑफ इंटरनेट, it means at a time either you can use it that phone as a modem or as you can use in for calling purpose. ठीक है, so this one is dial up connection. Second one is DSL. DSL होता है बेटा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL अगर हम इसको कंपेयर करें, DSL में भी वही होता है, ये भी वायर को यूज़ करता है, वही टेलीफोन लाइन से कनेक्शन होता है। लेकिन DSL कनेक्शन जो होता है अगर हम इसको कंपेयर करें डायल अप कनेक्शन से, तो एक तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, अगर हम DSL को कंपेयर करते हैं डायल अप कनेक्शन से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डायल अप में स्पीड कम थी, DSL में वही वायर यूज़ होता है, लेकिन इफ़ यू आर चूजिंग DSL कनेक्शन तो इसमें एक तो स्पीड उसकी हाई हो जाती है। सेकेंड, इट परमिट यू दैट यू कैन यूज दैट टेलीफोन, ठीक है, साइमल्टेनियसली फॉर बोथ द पर्पस। टेलीफोन से कॉल भी कर सकते हैं, सेम मोमेंट पे आपका इंटरनेट भी वर्क करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड DSL कनेक्शन? डायल अप गाइडेड मीडियम इट विल यूज, सेकेंड it will allow you to do only perform only one function at a time. DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, स्पीड इसकी उससे ज़्यादा होती है, ये भी उन्हीं वायर्स को यूज़ करता है, बट एज कम्पेयर टू डेट स्पीड इसकी फास्ट होती है। सेकेंड इज दैट इट अलाउज यू टू यूज़ इंटरनेट प्लस टेलीफोन बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो दिस वन इज DSL. Third one is your cable internet. Cable internet means your data is transfer faster than DSL connection. केबल इंटरनेट, यहाँ पे भी केबल वायर्स ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन केबल इंटरनेट इट इज़ मोर फास्टर एज कम्पेयर टू DSL. सो अगर मैं वायर्ड कनेक्शन की बात करूँ, तीनों में वायर यूज़ हुआ, डायल अप में भी, DSL में भी, केबल में भी, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ कि डायल अप में स्पीड सबसे कम होती है, DSL में उससे ज़्यादा होती है। डायल अप में वी आर यूजिंग फ़ोन ओनली फॉर वन पर्पस एट अ टाइम, while in DSL phone we are using and at the same moment we can use it for internet purpose also. If we are discussing about cable internet, तो केबल में भी क्या होता है that its speed is as compared to DSL more faster and it will also use for both the purpose. ठीक है, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं and at the same time हम उससे कॉल भी कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज द एग्जाम्पल। चिल्ड्रन नेक्स्ट वन है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन देखो वो तीनों तो वायर्ड थे, ठीक है, तीनों में वायर यूज हो रहा था फॉर इंटरनेट पर्पस, बट इफ वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वायरलेस, तो सैटेलाइट कनेक्शन है ये वायरलेस टाइप का हो गया। ठीक है, अगर हम कनेक्शंस की बात करें, इंटरनेट कनेक्शन टू टाइप हो गए, वन इज़ वायर्ड, वन इज़ वायरलेस। वायर्ड में थ्री टाइप्स आर देयर, डायल अप कनेक्शन वायर से होता है, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL कनेक्शन, थर्ड वन इज केबल इंटरनेट। ठीक है, नाउ वायरलेस कनेक्शन अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज दिस सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन यू ऑल आर यूजिंग द DTH ना, वो डिश TV एट योर होम। ठीक है, वहाँ पे क्या है, satellite is there, ठीक है, that company they are placing the one satellite in the atmosphere and your that dish TV what it do, it will take waves
from, or we can say it will take data from that satellite, और उसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं. टीवी में यही तो है. ठीक है. सो सैटेलाइट कनेक्शन हेयर स्पीड इज हाई एंड इट विल यूज अनगाइडेड मीडियम. अनगाइडेड मीन्स दैट एयर वी आर यूजिंग. ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं है, एयर कहीं से भी जाके सिग्नल को कैच कर सकती है. सो दिस वन इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कनेक्शन. ठीक है. Second is, next is 3G and 4G connection. What does this G means? G means generation. जितना ज़्यादा G होगा उतना ज़्यादा स्पीड हाई होगी. अब तो 5G भी आ गया ना एयरटेल में. दिस वन, दैट वन इज़ 5G कनेक्शन. सो ये G का मीनिंग क्या होता है? G मीन्स जनरेशन. और इसका मीनिंग क्या होता है कि जितना ज़्यादा जैसे G बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा स्पीड है वो हाई होता जाएगा. ठीक है. एंड इसमें क्या होता है, जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल ऑलरेडी कंटेनिंग इनबिल्ट एंटीना. ठीक है, ऑलरेडी अपने मोबाइल में वो सेटिंग्स होती हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट एंटीना होता है, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन. ओके. तो अगर हम वायरलेस की बात करें तो फर्स्ट वन है सैटेलाइट कनेक्शन. वन सैटेलाइट इज देयर, दैट्स फ्रॉम दैट सैटेलाइट वी आर टेकिंग सिग्नल्स एंड फ्रॉम विद दीज सिग्नल्स वी आर वर्किंग विद इंटरनेट. 3G and 4G system. Now 5G systems are also there that we are using for connecting to the internet. A very unguided medium is there, and with this we are taking the data. Next one is Wi-Fi. Wi-Fi stands for wireless fidelity. Wi-Fi and this WiMAX. ठीक है, this one WiMAX, they both are very important. ठीक है, डायरेक्ट नोट आता है इसके ऊपर, एक्सप्लेन वाईफाई, एक्सप्लेन WiMAX. चिल्ड्रन, वाईफाई क्या होता है? वाईफाई होता है ना घर में, दैट वी आर प्लेसिंग वाईफाई कनेक्शन. वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडिलिटी, एंड इन दिस वाईफाई दैट वी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ दिस वायरलेस मीडियम. ठीक है. और वाईफाई किस टाइप की वेव्स यूज़ करता है? इट विल यूज़ दैट रेडियो वेव्स. ठीक है, समझ में आया? अगर हम बात कर रहे थे वहाँ पे डायल अप कनेक्शन की, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, वो सब तो वायर्ड थे, लेकिन वाईफाई है, दिस वन इज़ वायरलेस. ठीक है. यहाँ पे ये कौन सी वेव्स यूज़ हो रही हैं जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है? रेडियो वेव्स दे आर यूजिंग. देखा है that sometime what happened, that raining is there, and in that time if you are switch on your this TV, that connection is not established. ठीक है, because due to this rain connection is not established, so signal your that dish TV is not able to collect the connections from there. जब कनेक्शन नहीं आता तो what happen, your TV, your whatever the signals are there, it will not display to you. ठीक है. तो same thing is there, your Wi-Fi, it work on radio waves for transmission of data. Now if we discuss this Wi-Fi के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज एक्सेस पॉइंट. एक्सेस पॉइंट, दैट वन इज वायरलेस लैन ट्रांस रिसीवर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. ठीक है. और हम इसे कह सकते हैं बेस स्टेशन. सबके मोबाइल में एक्सेस पॉइंट होता है, एंड विद दैट एक्सेस पॉइंट वी आर कनेक्टिंग टू वन और मैनी वायरलेस डिवाइसेस. ठीक है. अगर फ़ोन में आपके एक्सेस पॉइंट होगा तभी तो हम किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड होता है चिल्ड्रन इज लाइक दिस टाइप वाईफाई कार्ड इज देयर इन कंप्यूटर्स. ठीक है. इफ़ यू वांट टू यूज़ इंटरनेट तो वहाँ पर क्या होता है? दैट वी आर यूजिंग दिस वाईफाई कार्ड. ठीक है. इसको हम बोलते हैं लैन कार्ड, दैट वी आर यूजिंग, दैट वी आर प्लेसिंग इन द कंप्यूटर CPU, एंड विद दिस वी आर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट. ठीक है. एक तो था डायल अप कनेक्शन, देयर वी आर यूजिंग दैट वायर, उसको हमने कनेक्ट किया और उससे चला दिया. इफ़ वी आर यू वांट टू वर्क विद दिस वायरलेस कनेक्शन तो हमें ये लैन कार्ड लगाना पड़ता है, दिस वाईफाई कार्ड. व्हेन वी आर प्लेसिंग इन CPU, देन दैट कंप्यूटर इज एबल टू कनेक्ट विद द वायरलेस डिवाइसेस. ठीक है. सो दिस वाईफाई कार्ड वी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन इज सेफ गार्ड. सेफ गार्ड्स होते हैं जो फायरवॉल और एंटीवायरस, ये जो होते हैं, दीज आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम अनइनवाइटेड यूजर्स. ठीक है. ये तो मैंने बेसिक ICT स्किल में भी बताया था, दैट फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दे आर प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम अनइनवाइटेड यूजर. मीन्स अगर कोई हैकर उसे हैक करना चाहे तो दैट सेफ गार्ड विल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम दीज अनइनवाइटेड यूजर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वाईफाई हॉटस्पॉट. वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? दैट विद दिस कनेक्शन, दैट फिजिकल लोकेशन वेयर एन एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड द पब्लिक विद दिस वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क.
ठीक है। वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? डेट फिजिकल कनेक्शन, डेट फिजिकल लोकेशन, जहाँ से हम अपने एक्सेस पॉइंट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस से। होता है ना घर में डेट वी आर हैविंग वाईफाई कनेक्शन, तो ऑल वी आर कनेक्टिंग टू डेट वाईफाई, ठीक है। तो हमारे फ़ोन में अगर एक्सेस पॉइंट होगा देन ओनली वी आर एबल टू कनेक्ट टू डेट वाईफाई, ठीक है। और वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है कि अगर उस डिवाइस को अगर मैं जब तक हॉटस्पॉट ऑन नहीं करते, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू दैट डिवाइस, सो दैट्स वन इज दैट एक्सेस द फिजिकल लोकेशन, ठीक है, फिजिकल लोकेशन फॉर दैट पॉइंट जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज दिस वाईफाई नेटवर्क वर्क? Children, from this topic we will discuss in our next class. Otherwise you are complaining me कि ma'am again one long video. So many students are saying me कि ma'am you will please decrease the size of the video. So for you I am stopping this topic here only. In our next class, first we will take quick revision tour what we covered in our previous class, and then we will continue with these topic that how this Wi-Fi network work, what do you mean by this WiMAX, and then we will go through these switching techniques. ठीक है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया what we discussed in our today's class, we discussed about that total जो हमारा connection होता है, that one is two type, wired and wireless. And one term is there, ISP. ISP is internet service provider, means वो company that will provide us this connection. Our ISP, few examples, Airtel, Reliance, Idea, these are the example of major ISP that we are using. Now our जो internet connection है, it will divide into two category, wired and wireless. Wired की बात करें तो dial up internet, broadband internet, ठीक है। वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में आ जाता है डेट वी आर यूजिंग हॉटस्पॉट एंड दीज थिंग, वाईफाई, ठीक है। अगर हम अब नाउ वी आर डिटेल व्हाट वी डिस्कस, डायल अप कनेक्शन। डायल अप में क्या होता है, डैट विद दिस फोन केबल वी आर यूजिंग फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट, ठीक है। गाइडेड मीडियम होता है, स्पीड इसकी स्लो होती है। DSL, ये भी वाईफाई वो वायर्ड मीडियम होता है। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। स्पीड इसकी एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें हम एट द सेम टाइम वी कैन यूज़ फ़ोन फॉर कॉलिंग पर्पज़ ऑल्सो, फॉर इंटरनेट ऑल्सो। केबल इंटरनेट ये भी वायर्ड होता है बट इसकी स्पीड DSL से भी ज़्यादा होती है। सेटेलाइट कनेक्शन ये वायरलेस है, अनगाइडेड मीडियम ये यूज़ करता है, ठीक है। एंड व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट विल यूज़, it will work on these radio waves, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस 3G सिस्टम एंड 4G सिस्टम। 3G एंड 4G मीन्स थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जितना बड़ा जनरेशन होगा उतने ज़्यादा मीन्स उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतने ज़्यादा नेटवर्क में पैकेट्स होंगे वो मूव करेंगे उतनी स्पीड से। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, यहाँ पे क्या होता है, वी आर यूजिंग द सेम रेडियो वेव्स हम यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स वाईफाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई कार्ड, लैन कार्ड जिसको हम बोलते हैं। सेफ गार्ड मीन्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस। वाईफाई हॉटस्पॉट जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। एक्सेस पॉइंट हमारे खुद के फ़ोन में होना चाहिए जिससे हम कनेक्शन करें। वाईफाई हॉटस्पॉट वो फिजिकल लोकेशन जहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क। So children, from this topic we will discuss in our next class. Till then do revision from your book, ठीक है। and those who are not having book please do revision from this video 2-3 time, so ये आपको समझ में आ जाएगा। but still if you found any problem I am here, ठीक है। we will again do the revision in our next class, so don't worry about it, ठीक है। so thank you so much for listening me children, thank you class, thank you।